ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ آپ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی تمہارے اوپر بہت سی نعمتیں ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو دیکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم سب مل کر اور پوری زمین کے روئے زمین کے سارے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی اور ناشکری پر اتر آئیں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کی ذات بے پرواہ ہے اور وہ تو تعریفوں اور خوبیوں والی ہے، اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا نقصان بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر فرماتے ہوئے آگے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو تم سے پہلے قومیں گزریں اور ان کی خبریں تم تک پہنچیں۔ وہ قومیں کون سی تھیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی حالات دیکھ لیجئے، قوم عاد کے حالات دیکھ لیجئے، قوم سمود کے حالات دیکھ لیجئے، اور ان کے بعد جتنی قومیں آئیں ان سب کے بھی حالات دیکھ لیجئے۔ کچھ ایسی قومیں کہ جہاں پر جن کے معاملات کا اللہ کو علم اور کسی کو علم نہیں، اور کچھ ایسی قومیں جن کی خبریں اللہ نے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرماتے ہوئے یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ان قوموں نے جب اپنے رب کی ناشکری کی، ان قوموں نے جب اپنے نبیوں کا انکار کیا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا کیا حشر ہوا، ان کے ساتھ ہم نے کیسے نمٹا، ہمارا عذاب ان پر کیسے آیا۔ الم یأتکم، کیا نہیں پہنچی تمہیں، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے کے حالات ہیں۔ تم سے پہلے کون سے لوگ تھے؟ قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم نوح وعاد وثمود، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بعد جو قومیں تھیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں تمہیں معلوم ان کے بارے میں الا اللہ، مگر اللہ کو۔ اللہ نے بہت سی خبریں، دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جن میں صرف 25 نام انبیاء رسولوں کے قرآن پاک میں مذکور ہیں بس، اور واقعات بہت کم ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی اللہ فرماتے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، ان کا تو علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے بہت تھوڑی واقعات اور قصص اور حالات ہمارے سامنے رکھے جن کو ہمیں ضرورت تھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی۔ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ اب قوم کا رد عمل کیا رہا؟ نبی آتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آتا ہے۔ قوم کا رد عمل، فردوا ایدیہم،
फरद्दू फिर लौटाए उन्होंने, ऐदियहुम अपने हाथ, फी अफवाहिहिम उनके मुंह में। इसकी एक तफसीर ये है कि अपने हाथ उठाकर नबी के मुंह पर रख दिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, मत बोलो, मत समझाओ हमें कुछ, हम नहीं आपकी बात सुनने वाले। एक तफसीर ये है कि अपने हाथ अपने मुंह के अंदर दे लिए कि ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, हम तो इसकी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, एक काम तो ये किया कि फरद्दू ऐदियहुम फी अफवाहिहिम, कि फिर लौटा लिए ऐदियहुम उन अपने हाथ, फी अफवाहिहिम उनके मुंह में, वक़ालू और जुबानों से कहने लगे, इन्ना कफरना कि बेशक हम नहीं मानते, कफरना हम इनकार करते हैं, हम नहीं मानते, बिमा उर्सिलतुम बिही जो चीज़ देकर तुम भेजे गए हो, जो शरीयत तुम लेकर आए हो हम नहीं मानते, हम इनकार करेंगे इसका, जो दीन लेकर आए हो हम नहीं इसको मानते, इन्ना कफरना बेशक हम इनकार करते हैं, बिमा उस शरीयत और दीन का, उर्सिल तुम भी ही जो तुम्हें देकर भेजा गया है। वजह क्या है जी? व इन्ना लफी शक्किन, और बेशक हम तो शक में हैं, मिम्मा उस चीज़ से, तदऊनना जिसकी तरफ तदऊनना इलैहि तुम बुलाते हो हमें, इलैहि जिसकी तरफ, मुरीब ऐसा शक जिसने हमें तरद्दुद में डाल रखा, हम तो उस शख्स से निकलने नहीं पा रहे, ऐसे शुबहात में हमें है, खुलजान पड़ा हुआ है कि हमारा दिमाग वहां से निकलता ही नहीं। ये जो शुबहात हैं और ऐसे शकूक हैं, ये शैतान का काम है कि शैतान इंसान को शुबहात की दलदल में फंसा देता है और सामने कुरान पाक की आयत हैं और इंसान बरमला कुरान पाक की आयत का भी इनकार कर देता है। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आती हैं, इंसान शकूक व शुबहात में फंसा हुआ अहादीस नबविया का भी इनकार कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और दीगर अंबिया की बातें आती, इनकार कर देता है। ये शकूक व शुबहात। क़ालत रुसुलुहुम, ये बात सुनने के बाद जो रसूल थे उन्होंने क्या जवाब दिया? क़ालत कहा, रुसुलुहुम उनके रसूलों ने, अफ़िल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में तरद्दुद हो गया? क्या अल्लाह के बारे में शुबा हो गया? क्या अल्लाह के बारे में शक हो गया? क्योंकि नबी किसकी तरफ बुला रहे थे? नबी लोगों को बुतों से तुड़वा कर अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलवा रहे थे, बुतों से छुड़वा कर अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ रहे थे। और उन्होंने यही कहा कि जनाब आप जिसकी तरफ हमें बुलाते हैं यही तो हमें शकूक व शुबहात हैं कि हमें बुतों से क्यों तुड़वाया जा रहा है। तो नबियों ने क्या कहा? क़ालत रुसुलुहुम, कहा उनके रसूलों ने, अफ़िल्लाहि शक्कुन, क्या अल्लाह के बारे में शक हो गया तुम्हें? क्या अल्लाह के बारे में शुबहात पड़ गए? फातिरिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की ज़ात तो वो है जो पैदा करने वाला, जो बनाने वाला आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीन को। अल्लाह की ज़ात तो आसमानों और ज़मीनों को बनाने वाली, तुम इसी के बारे में शक में पड़ गए। यदऊकुम, और वो बुलाते हैं तुम्हें। नबी किस लिए बुला रहे हैं? उसमें भी फ़ायदा तुम्हारा है। नबी इसलिए बुला रहे हैं, लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं। जब बुतों को छोड़कर अल्लाह के दर पर आओगे, बुतों का इनकार करके जब अल्लाह की बात मानोगे, तो फ़ायदा सबसे पहला क्या होगा? लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि बख्श दें तुम्हारे गुनाह को, वयुअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, वयुअख़्खिरकुम और ढील दे तुम्हें, इला अजलिन एक वादे तक, मुसम्मन जो मुकर्रर हो चुका, जो ठहर चुका, जो वादा, जो वक़्त मुकर्रर हो चुका, उस वक़्त तक तुम्हें ढील दी जाए। क़ालू, अब नबियों ने जब ये बात कही कि अल्लाह की तरफ हम बुला रहे हैं और अल्लाह के बारे में शकूक व शुबहात करके बैठ गए, और अल्लाह के पास आओगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा? लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा। जवाब क्या था? क़ालू, वो कौम के लोग कहने लगे, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, कहने लगे नहीं हो तुम, इन अंतुम नहीं हो तुम, इल्ला बशरुन मगर इंसान हो, मिस्लुना हमारी तरह।
आप लोग नबी होने का दावा कर रहे हो, आप लोग रसूल होने का दावा कर रहे हो, हालांकि आप हमारी तरह इंसान हैं। और इंसान नबी कैसे बन गया, इंसान रसूल कैसे बन गया? ये शैतान ने सबसे बड़ा धोखा दिया इंसान को। और इंसान फिर आगे फरमाइशें करने लगा, इंसान बोलने लगा कि नबी होने के लिए फरिश्ता होना चाहिए था, नबी होने के लिए आला और अरफा और होना चाहिए था। नबी आला भी होता है, नबी अरफा भी होता है, नबी अजमत वाला भी होता है, नबी फजीलत वाला भी होता है, लेकिन ये मेरे अल्लाह का एहसान है कि इंसानों की हदायत के लिए इंसानों में नबी बनाए, इंसान नबी बनाए। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह फरमाते हैं, ए उम्मत वालो, ये नबी का तरीका तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका है, नबी की चाल तुम्हारे लिए बेहतरीन चाल है, नबी का उठना तुम्हारे लिए बेहतरीन उठना है, नबी की खुशियाँ तुम्हारे लिए बेहतरीन खुशियाँ हैं, नबी की गमियाँ तुम्हारे लिए बेहतरीन गमियाँ। नबी जो जो करता जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, ये तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाते जाओ, यही तुम्हारे लिए कामयाबी है। देखो, इंसान नबी है तो इंसान को इंसान की नकल उतारना और उसकी सारी की सारी पूरी की पूरी नकल उतार कर उस जैसा बनना ये आसान है, उसके अमल उस जैसे करके दिखाना ये आसान है। और अगर फरिश्ता होता तो फिर इंसान उसकी पैरवी कैसे कर सकता था, इंसान उसकी नकल कैसे उतार सकता था? क्योंकि फरिश्ता खाने से पाक, इंसान को खाने की ज़रूरत, फरिश्ता ख्वाहिशात से पाक, इंसान ख्वाहिशात का पाबंद मोहताज। तो कहने लगे, कालू कहने लगे, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम इल्ला बशरुन मगर इंसान हो, मिस्लुना हमारी तरह। तुरीदूना तुम चाहते हो, अन तसुद्दूना ये कि तुम हमें रोक दो, अम्मा उस चीज़ों से, काना याबुदु आबाउना जिनकी पूजा करते थे हमारे बाप दादा। याबुदु इबादत करते पूजा करते थे, आबाउना हमारे बाप दादा जिनकी पूजा करते थे। ए नबियो, ए रसूलो, तुम्हारा यही मकसद है कि हमें उन चीज़ों से रोक दो जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे। हम तो कभी बाप दादा के मिशन को छोड़ने वाले नहीं, हम तो उनके पीछे चलेंगे। फ़अतूना बिसुल्तान मुबीन, अगर तुम वाकई हमें छुड़वाना चाहते हो, हमें उस दीन से, हमें उस रास्ते से हटाना चाहते हो जिसके ऊपर बाप दादा चलते रहे, तो फ़अतूना बिसुल्तान मुबीन, कोई वाज़ेह दलील लेकर आओ। फ़अतूना लेकर आओ हमारे पास, बिसुल्तान कोई वाज़ेह दलील। वाज़ेह दलील से मुराद क्या? फरमाइशी मौजज़ा। हर नबी को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए, हर नबी को अल्लाह ने उसकी नबूवत की निशानियों के लिए मौजज़ात निशानियाँ दी, जो कि कौम के सामने रखें, कौम वाले देखें कि ये नबी है, इसके हाथ से मौजज़ात ज़ाहिर हो रहे हैं। लेकिन नबी जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक को मौजज़ात दिखाएगा वो मामला और, लेकिन जब कौम फरमाइशी मौजज़ात का मुतालबा करेगी और कौम कहेगी हम ये मौजज़ा नहीं मानते, तुम ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, तो नबी फरमाइशी मौजज़े कभी पूरे नहीं करते। ये फ़अतूना बिसुल्तान मुबीन फरमाइशी मौजज़ों का मुतालबा है। क़ालत लहुम रुसुलुहुम, अब नबियों के ऊपर सबसे पहला एतराज़ क्या किया कि आप हमारी तरह इंसान हैं? जवाब, क़ालत लहुम रुसुलुहुम, कहा उनको उनके रसूलों ने, इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है हम मगर इंसान हैं तुम्हारे जैसे। वाकई ये बात तो तुम्हारी ठीक है, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, लेकिन फ़र्क क्या? वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु, लेकिन अल्लाह की ज़ात यमुन्नु एहसान फरमाती है, अला मन यशाउ मिन इबादिही, उस पर जिस पर चाहे अपने बंदों में। अल्लाह जिस पर चाहता है अपने बंदों में से उस पर एहसान फरमा देता है। तो अल्लाह ने एहसान फरमाया, तुम भी इंसान हम भी इंसान, अल्लाह ने हमें नबी बना दिया, अल्लाह ने एहसान फरमाकर हमारे सरों पर नबुव्वत का ताज सजा दिया। तो नबी कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती का नाम होता है, तो ये अल्लाह का एहसान है। वमा, और दूसरा तुम्हारा मुतालबा कि हम तुम्हारी फरमाइशी मौजज़ात पूरे करके दिखाएं। वमा कान लना, और नहीं है हमारे पास इख्तियार, अन नअतियकुम, ये कि हम लेकर आए तुम्हारे पास, बिसुल्तानिन कोई मौजज़ा कोई दलील, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो हम मौजज़ा दिखाते हैं, जब अल्लाह का हुक्म ना हो तो हम कुछ नहीं दिखा सकते, हमारे पास कोई ताकत नहीं।
वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर बस चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। ईमान वालों को यही हुक्म है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा इख्तियार करें, तवक्कुल इख्तियार करें। तवक्कुल का माना होता है भरोसा, और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर करना असबाब के मुनाफी नहीं है। हमें दुनिया में रहते हुए असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, असबाब इख्तियार करो, लेकिन असबाब के ऊपर आप तवज्जो ना रखो कि ये जो सबब इख्तियार कर रहे हैं ये सब कुछ कर देगा। करने वाली सारी की सारी ज़ात अल्लाह ताला की, ये है तवक्कुल। असबाब इख्तियार करो लेकिन भरोसा असबाब पर ना रखो, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखो। असबाब कुल 3 किस्म के हैं दुनिया में जो इंसान इख्तियार करता है। इनमें कुछ असबाब ऐसे हैं जहां पर अल्लाह पाक ने उनके अंदर भी कुछ तासीर रख दी है, ज़ाहिरी तौर पर उनमें भी कुछ तासीर रख दी अल्लाह पाक ने, और असल हकीकी तासीर अल्लाह की ज़ात के पास है। इनमें सबसे पहले आता है असबाब मक़तूआ, वो असबाब जो कतई हैं, हकीकी हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ तासीर रखी है। जैसे भूख लगी, खाना खा लिया, अब खाना खाना ये भूख के मिटने का सबब बन गया। प्यास लगी तो पानी पी लिया, अब पानी पीना ये प्यास बुझ जाने का और प्यास ख़त्म होने का ज़रिया और सबब बन गया। यहाँ पर भी कुछ तासीर इन असबाब के अंदर है, लेकिन असल हकीकी सारी की सारी तासीर वो अल्लाह की ज़ात के पीछे है कि अल्लाह की ज़ात के पास सारा कुछ है। हमें खाना खाते हुए भी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए कि इस खाने के अंदर मेरी भूख मिटाने का असर नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात के पास ताकत है कि मेरी भूख को मिटाएगा। इसलिए हम खाने के शुरू में अल्लाह का नाम ले लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला। तो हमने अल्लाह का नाम भी लिया और अल्लाह की रहमत की दुआ भी मांग ली कि ऐ अल्लाह हम तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे असबाब का मालिक भी तू और तासीर देने का मालिक भी तू। तो ये असबाब मक़तूआ है। और दूसरे नंबर पर हैं असबाब मज़नूना, ज़न्नी असबाब। जैसे बंदा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास चला गया, वहाँ से दवाई ले ली, डॉक्टर ने कहा ये दवाई खाओ अल्लाह आराम देगा। अब इसके अंदर असबाब इख्तियार करने का हमें हुक्म है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, लेकिन भरोसा हम अल्लाह की ज़ात पर रखें कि दवाई के अंदर शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हुक्म के अंदर है। अल्लाह हुक्म देंगे तो शिफा होगी, अगर अल्लाह हुक्म नहीं देंगे तो शिफा नहीं होगी। और ये मिसालें हमारे सामने हैं कि एक ही दवाई बंदा एक वक्त में खाता है, उससे अल्लाह शिफा दे देते हैं। दोबारा जब बीमार होता है वही दवाई इस्तेमाल की, फिर शिफा नहीं मिली। और एक आदमी ने फलां जगह से दवाई ली, अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता फरमा दी, उसको भी वही बीमारी थी और वही बीमारी दूसरे बंदे को थी, उसने जाकर वहां से दवाई ली, उसको शिफा नहीं मिली। यहां तक कि एक ही घर के 2 आदमी हैं और दोनों का मामला और बीमारी एक ही है, एक डॉक्टर से इलाज शुरू हुआ, एक को अल्लाह ताला ने शिफा दे दी और दूसरे को शिफा नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह दुनिया में हमें समझा रहे हैं कि ताकत अल्लाह की पीछे है, इन दवाइयों के अंदर कोई ताकत नहीं, इन दवाइयों के अंदर कोई तासीर नहीं, तासीर अल्लाह की ज़ात के पास है। ये तो असबाब हैं जिनके इख्तियार करने का हमें दुनिया में हुक्म है कि असबाब ज़रूर इख्तियार करो। अब एक बंदा बीमार हो गया और वो बिस्तर पर पड़ा है और दवाई लेने नहीं जा रहा, बस जी ताकत अल्लाह ताला की ज़ात के पास, अल्लाह खुद ही शिफा देगा। ये अगर मर गया ऐसे ही और दवाई नहीं ली तो खुदकशी की मौत मरेगा। ऐसे ही एक बंदा भूखा है और वो खाना खाने के इंतज़ाम नहीं करता और भूखा पड़ा रहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पीछे ताकत वाले हैं और अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, तवक्कल करता हूँ, ये अगर भूखा मर गया तो खुदकशी करने वाला होगा, हराम मौत मरेगा। इसलिए असबाब इख्तियार करने का हुक्म है। और तीसरे नंबर पर हैं असबाब मौहूमा। जैसे बच्चा बीमार हो गया, दम करवा लिया,
कोई पानी में तावीज़ डाल के तो वो उसको पिलवा दिया, बशर्ते कि शिरक से पाक हो। तो ये असबाब मौहूमा हैं कि इनके अंदर भी अल्लाह पाक ने कुछ तासीर रखी है, लेकिन असल हुक्म पीछे अल्लाह की ज़ात का है। तो इसलिए ये सारे के सारी चीज़ें इख्तियार करने का हुक्म है, लेकिन हमें सारे का सारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखने का हुक्म है। इसलिए फरमाया वमा लना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह, नबियों ने कहा अपनी कौमों को, वमा लना क्या हो गया हमें, अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह कि ना हम भरोसा करें अल्लाह की ज़ात पर, वक़द हदाना सुबुलना, हालांकि हदायत दी हमें अपने रास्ते की, अल्लाह ने हमें अपने रास्ते की हदायत अता फरमाई, तो हम उस ज़ात पर भरोसा क्यों ना करें। तो हम भी सोचें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी नेमतें दी, अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी नेमतों की बारिशें बरसाईं, अब हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा क्यों ना करें। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, और हम सब्र करेंगे, ज़रूर भी ज़रूर सब्र करेंगे, अला मा आज़ैतुमूना, उन चीज़ों पर जो तुम हमें तकलीफ़ देते हो। नबियों को जो तकलीफ़ें दी गईं, नबियों ने कहा कि हम इन तकलीफ़ों पर ज़रूर सब्र करेंगे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करते हैं भरोसा करने वाले। जिन्होंने भरोसा करना होता है, जब वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं तो उनको तकलीफ़ें कुछ नहीं कहती, वो सब्र करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हैं कि अल्लाह इस तकलीफ़ के बदले में मुझे सब्र अता फ़रमाएगा, अल्लाह अपनी रहमत अता फ़रमाएगा। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की इनामात और बारिशें होती हैं। और अल्लाह का इरशाद, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की ज़ात की रहमत सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह की रहमत इंसान को मुयस्सर होती है, फिर इंसान को दुनिया में किसी किस्म की तकलीफ़ें नहीं आती। ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान था अपनी कौम के सामने, जिन कौमों ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुटलाया, अल्लाह ने फिर उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। आगे ये बात अभी चलेगी कि फिर कौम वालों ने अपने नबियों को क्या जवाब दिया। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।